Greetings of the day. I Chavi Gupta welcome you all in today's session. In the previous session, we were doing cell organelles, and we have done endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi complexes or Golgi apparatus, mitochondria. Now we will carry forward with some new organelles. That is, first is your plastids. First is your plastids. Now, what do you mean by plastids? Plastid is basically a Greek word means plastic cast, that means formed or molded. Means उसमें कोई चीज़ फॉर्म की गई है या आपने उसे किसी और शेप में मोल्ड किया है. The term plastid was given by Haeckel in 1866. Plastids are the largest cell organelle found in plant cells only. It is only found in plant cells. Please remember this point. They are spherical or discoidal in shape and are enclosed by two membranes. Spherical is sphere shape, discoidal के disc के shape में है and are enclosed by two membranes like आपका mitochondria. Here we also have two membranous structure. Inside a plastid, two different regions are clearly visible. आपको plastid के अंदर दो regions दिखते हैं. One is grana and second is stroma. Now, see the structure, understand it carefully. Now, see, this red color structure is your stroma, which is known as matrix. Please try to compare this matrix with a mitochondrial matrix. दोनों ही सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं और कुछ नहीं कराते. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हमने उसे मैट्रिक्स लिखा था, यहाँ पे हम इसे स्ट्रोमा लिख रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज पैरेलली टू ईच अदर. मीन्स एक डिस्क के ऊपर सेकंड, सेकंड के ऊपर थर्ड, थर्ड के ऊपर फोर्थ, फोर्थ के ऊपर फिफ्थ, जिसको आपने नेम दिया है ग्राना. ओके, सो दिस सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप सिंगल डिस्क की बात करते हैं, एक ही पाइल की बात करते हैं, एक ही स्फेयर की बात करते हैं, दैट स्फेयर इज थैलेकॉइड. बट जब थैलेकॉइड सारे आपस में अरेंज होंगे एक दूसरे के ऊपर, इट इज नोन एज ग्रेना. Okay, now then you can see that these grain are interconnected with each other with a line. That line is known as stroma lamellae. That is known as stroma lamellae. Now you can see we have said two membrane, that is inner membrane and outer membrane structure. Now what is a grana? Grana are membranous flattened discoidal sac piled over each other. See, पाइल्ड ओवर ईच अदर मीन्स कि आपने हर एक थैलेकॉइड को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, देन वो ग्राना फॉर्म हो गया. मीन्स जो सिंगल डिस्क है दैट इज योर थैलेकॉइड, एंड जब इन डिस्क को, इन थैलेकॉइड्स को आपस में आपने अरेंज किया एक के ऊपर एक, देन इट इज फॉर्म ग्राना. नाउ व्हाट इज ग्राना? दे कंटेन क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस. हम सब ने पढ़ा है that plants perform photosynthesis. Basically green plants perform photosynthesis. So in green plants they contain chlorophyll molecules. So these chlorophyll molecules are inside your grana. Okay, so they are called the kitchen of the cell. So grana are called the kitchen of the cell, or you can say that plastids are the kitchen of the cell. Okay, and mitochondria are the powerhouse of the cell. Now, स्ट्रोमा इज अ मैट्रिक्स ऑफ द प्लास्टिड इन विच लाइस अ ग्राना. ग्राना कहाँ पर है? स्ट्रोमा के अंदर. वो स्पेस, वो कौन सी स्पेस है? दैट इज योर मैट्रिक्स, एंड उस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला है? स्ट्रोमा. नाउ प्लास्टिड्स कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. प्लास्टिड्स के पास अपना डीएनए, लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए था अपने राइबोसोम से. ओके, तो सेम वे में प्लास्टिड्स के पास भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स है. दैट इज दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. राइबोसोम्स अपने तो अपने आप प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, बिकॉज उनके पास राइबोसोम्स हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स? वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिड्स. वी हैव 3 different types of plastids. Now what are they? First is your chloroplast, leucoplast and then chromoplast. बेसिकली हम जो प्लास्टिड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बेसिस है उनका कलर, कि किसके पास कौन सा कलर है. लाइक हम क्लोरोफिल की बात करते हैं. क्लोरोफिल क्या ग्रीन कलर का पिगमेंट है. वो ग्रीन कलर का पिगमेंट किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नाउ आपने पोटैटो देखा है. पोटैटो कौन से कलर का दिखता है? आउटर कवरिंग नहीं, इनर साइड. वो आपका सम वॉट वाइटिश भी दिखता है, सम वॉट येलोइश भी दिखता है, बट हम सब वाइटिश में कंसिडर करते हैं. दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ ल्यूकोप्लास्ट.
कलरलेस प्लास्टिड्स है विच स्टोर स्टार्च, एंड आपको पता है पोटैटो के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, लाइक योर राइस, उसके अंदर भी स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर करता है। क्रोमो, बेसिकली जो आपका क्लोरोप्लास्ट आया है वो क्रोमो से ही आया है, या यू कैन से कि क्लोरो से क्रोमो आया है, एनीवे कैन बी पॉसिबल। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन और वाइट के अलावा, मतलब कलरलेस प्लास्टिड और ग्रीन के अलावा जो भी कलर होगा वो कौन देगा, क्रोमोप्लास्ट, बिकॉज द वर्ड क्रोमो मीन्स कलर्ड। ओके, सो येलो और रेड कलर प्लास्टिड्स हैं आपका जो फ्लावर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लाइक आपने देखा है कि फ्रूट्स कलरफुल होते हैं, आपके फ्लावर्स कलरफुल होते हैं, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। इफ यू थिंक दैट अ मैंगो, आपने सबने आम भी सुना है, आम भी क्या है, ग्रीन कलर की दिखती है, बट जब वो मैच्योर हो जाती है, राइप हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, दैट मीन्स जब वो ग्रीन कलर की है दैट इज क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग। बट धीरे धीरे ये क्लोरोप्लास्ट जब राइप हो जाता है, मतलब आपका फ्रूट राइप हो जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्रोमो में कन्वर्ट हो जाता है एंड आपके फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, types of plastids. Now we will see functions of plastids. Now what are the functions of plastids? Chloroplasts are photosynthetic organelle. Photosynthetic organelles हैं. The chlorophyll present in them traps solar energy for the purpose of synthesizing food for the plants. सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा। ल्यूकोप्लास्ट फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा, एंड कलरलेस प्लास्टिड है, लाइक स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्रोमोप्लास्ट क्या करेगा, कलर प्रोवाइड कराएगा फ्लावर्स को, एक्सेप्ट ग्रीन एंड कलरलेस, ओके, दैट इज येलो, ऑरेंज, रेड, ओके, विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, जो क्या करेंगे, इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी विल हैव अ लुक फॉर अ वीडियो विच एक्सप्लेन ऑल दिस plastids and the structure of chloroplast. Okay, just a minute. Now we were going to look at the structures of chloroplast over here. Now see, these are the this is the structure of your plastids, or you can say it as a chloroplast over here. Now the space enclosed by inner membrane, you can say outer membrane, then inner membrane, and inner membrane के अंदर जो येलो कलर का स्पेस है, लाइट येलो कलर का स्पेस है, दैट इज योर स्ट्रोमा। सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है दैट इज योर स्ट्रोमा। नाउ ईच डिस्क इज कॉल्ड थैलेकॉइड, यू कैन सी द एरो, आप एरो देखिए ब्लैक कलर का जहाँ पे थैलेकॉइड लिखा है, वहाँ पर सिंगल एरो इंडिकेट किया गया सिंगल डिस्क पे, दैट मीन्स वो थैलेकॉइड को इंडिकेट कर रहा है। बट जो सर्कल बना हुआ है एंड 3 डिस्क आपस में इंक्लोज की गई है, देन उसको उन्होंने क्या बोला है, ग्राना बोला है। Now, plastids can present only in plant cells. Plastids can be of two types: chromoplast, colored plastids having pigments,
Leucoplasts, colorless or white, have their own DNA and ribosomes. Now, इन्होंने सिर्फ दो ही तरह की बताई है, बट एक्चुअली वी हैव थ्री. बट वो थर्ड वाली आपकी क्लोरो से क्रोमो और क्रोमो से क्लोरो में कन्वर्ट हो गई है. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट. Now our next cell organelle is vacuoles. Now vacuoles, you can see the structure of a plant of a cells. I am not saying that it is a plant cell or animal cell, just a normal cell. If you see that it is a cell membrane, then a purple color drop, and then inside a big green drop, big green circle. It is known as a vacuole, and the membrane of vacuole is known as tonoplast. So this is the structure of a vacuole basically. वैक्यूल्स आर नॉन लिविंग. नॉन साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनालिस नॉन लिविंग है, साइटोप्लाज्मिक सेल नहीं, साइटोप्लाज्मिक नहीं है. मीन साइटोप्लाज्म के अंदर आता है बट साइटोप्लाज्म में कंसिडर नहीं किया जाता सेल ऑर्गेनाली. नाउ दे आर फ्लूइड फिल्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म. फ्लूइड फिल्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड योर टोनोप्लास्ट. Next, in a plant cell, as much as 90% of the volume is occupied by a single vacuole. Basically क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है वैक्यूल के कंसिडरेशन में. दैट इन प्लांट सेल आपका बहुत सारे वैक्यूल्स कंबाइन होके एक लार्ज सिंगल वैक्यूल बनाते हैं, जिसकी वजह से 90% वॉल्यूम आपका सेल में वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है. सो इसकी वजह से क्या होता है, आपको जितने बाकी सेल ऑर्गेनालिज हैं वो कॉर्नर्स में शिफ्ट हो जाते हैं. मीन्स जो सेल मेम्ब्रेन है आपके प्लांट सेल की, उसके कॉर्नर्स पे सेल ऑर्गेनालिज शिफ्ट हो जाती हैं. ओके, बट एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और नहीं भी हो सकते, इट डिपेंड्स ऑन. बट एक्चुअल में प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से आपकी बाकी सेल ऑर्गेनालिज कॉर्नर्स पे शिफ्ट हो जाती है, एंड दिस कॉर्नर्स आर नोन एज पेरिफेरी. ओके, it occupies the central part of the cell. Therefore, the nucleus and the other cell organelles are pushed towards the periphery. Periphery means कि corners की तरफ shift होने start हो जाती है. Now, the fluid of the vacuole is called cell sap. जो vacuole के अंदर जो fluid है उसे हम क्या बोलते हैं? Cell sap. So, it contains cell sap में क्या है basically? सारे nutrients हैं, sugars हैं, amino acids हैं, proteins हैं, minerals हैं, metabolic waste है. In a single-celled organism like amoeba, the food vacuole contains the food items that amoeba has consumed. Now what it says that हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा में हमने क्या पढ़ा था कि उनके पास वैक्यूल नहीं है बट फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था. व्हाट इज फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? एक्चुअली में फूड वैक्यूल में फूड आइटम आता है जो भी वो खा रहे हैं. सो उसी के थ्रू उन्होंने जो डाइजेस्ट करना है करके देन जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू ही निकलेगा, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेल ऑर्गेनाइज प्रॉपरली. In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess waste and some waste from the cell. Now, what are the functions of vacuole? Vacuoles are meant for the storage of food, water, and other substances. They help in the elimination of excess water from the cell. बिकॉज आपको पता है प्लांट में अगर एक्सेस वाटर होगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा तो उससे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी. सो दिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन एंड मेंटेन्स इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल. नाउ फर्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, देन वी विल सी द वीडियो ऑन वैक्यूल्स. Now what is the basic difference between plant cell and animal cell, which is very much important for you. Now फर्स्ट इज साइज. एनिमल सेल में साइज जनरली छोटा होता है, प्लांट सेल का साइज जनरली बड़ा होता है आपका. सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है. वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, सिंगल होता है, एंड सेंट्रली लोकेटेड होता है. बट एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो स्मॉलर साइज होगा और बहुत सारे नंबर्स में होगा. प्लास्टिड्स एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है. सेंट्रोसोम बेसिकली आपका डीएनए आप जो अब हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग होता है. ना पोजेसिव सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं. गोल्गी बॉडीज आपका बहुत सारा होता है, हाईली इलैबोरेट होता है, न्यूक्लियस के पास होता है एनिमल सेल में.
बट हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है एंड वो सिंगल होता है, दैट इज डिक्टियोजोम। स्टोर्ड फूड आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। न्यूक्लियस आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के, बट यहाँ पे पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है प्लांट सेल में। क्यों? क्योंकि आपका वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा है। नाउ वी विल हैव अ वीडियो ऑन वैक्यूल्स। Now we will see a video on vacuoles. Now see, vacuole is a fluid-filled structure. Now it is surrounded by a membrane, that is your tonoplast. You can see this is a plant cell basically in which the vacuole size is very large. Therefore the organelles, that is pink color organelle, आपका green color organelles, orange color के organelles जो nucleus के around है वो सब पेरीफेरी पे शिफ्ट हो गई है, कॉर्नर पे शिफ्ट हो गई है। ओके Now this is the structure of a plant cell that you need to draw in your notebooks. But before that, just have a look on the structure of a plant cell. Now on the center part you have a vacuole. Now then a purple color part which is known as a nucleus. Then a blue color part in the nucleus is your nucleolus. Then the outer covering is your nuclear envelope. Then you have a cell wall. Okay, now then beyond the nucleus you have endoplasmic reticulum and all the organelles float in cytoplasm. Now above that you have mitochondria. Then this is green color structure is your chloroplast. आपका माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो है. Now next is also your chloroplast. Now cell wall के next layer आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. Then peroxisomes है. Now it is similar to dictyosomes, don't confuse with that. Now Golgi apparatus आपका पैरेलली अरेंज्ड है. राइबोसोम्स आपका फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं. यू कैन सी डॉट स्फेरिकल डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स. नाउ दिस इज अ प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली आपका जंक्शन है बिटवीन टू सेल वॉल्स. हमने पढ़ा है कि सेल वॉल आपस में कनेक्टेड होती है. तो जो ये सेल वॉल्स आपस में कनेक्टेड होती है तो सेल वॉल्स में भी तो मटेरियल ट्रांसफर होना चाहिए. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल. Now, that is what we have seen in vacuoles. This is a video for vacuoles. Now we will see a video of animal cell which explains you all the concept that we have studied over here. Just a minute. That's all for today. Thank you. Please do copy all these notes before so that you can get a better understanding. Thank you.